हेलो एंड वेलकम टू 15th एपिसोड ऑफ बिटकॉइन वीकली। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, who's very attentive. Please introduce again, Bhavik. Yeah. कौन है ये? So Dannu is again with us. She is excited for the this week. लेकिन एक बुरी खबर ये है कि ये दन्नू प्यारी कैट ने वजीरेक्स के हैक में काफी क्रिप्टो एसेट लॉस्ट किया है. Like she forgot to do self custody. So now she has lost and now she is biting me. आप ही ने रेकमेंड किया वजीर एक्स पे लेने के लिए। मैंने बोला कि विड्रॉ कर लो पर माने नहीं, बोले कि मैं नहीं करूंगी. आई ट्रस्ट वजीरेक्स सीईओ. तो अब वैसे ये कुछ भी है तो बस फाउंडर सीईओ है कौन नहीं पता, अब तक निश्चल क्लैरिटी सेट्टी है पक्का ना, है आई क्या? थिंक. वही है क्या? मुझे नहीं हाँ पता। वही है. लाइक मेन तो पोजीशन में ये रहता है निश्चल सेट्टी. अच्छा, वही होगा सीईओ, क्योंकि सबसे आगे हर उसका लीडर तो वही है. चलिए विल या स्टार्ट विद टुडेज क्या बोलते हैं 15th एपिसोड है ना. या 15th एपिसोड, यस। हम्म, बट जो भी प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स थे प्राइस को लेके, वो काफी कुछ सॉर्ट हो गए हैं। लाइक लास्ट वीक ऑलमोस्ट 57 तक था, 56 57। राइट अब जुलाई 5th को देखोगे तो 55,000 था। नाउ इट इज एट राइट 67,000। So in 7 days it is like risen 11.27%. These राइट. are because of many factors, some of which we'll cover today. And बहुत सारी चीजें हो रही हैं on a global scale, especially in the US, राइट which is impacting the price significantly. India राइट. में unfortunately last week we've had WazirX का hack. Now this is a very serious issue, and WazirX has been known to be a long-standing exchange in India, and बहुत टाइम से चला आ रहा है, almost from 2016 2017, I'm not sure, उससे पहले। या उसके आसपास ही मान लो. हाँ, लाइक 2018 yeah, 2019 में तो था ये. yeah, राइट. and इन्होंने अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट किया है लाइक इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज अगेन, लाइक वो अफिनिटी नहीं होता, लाइक के बिटकॉइन को आगे रख दिया एंड बाकी सारे शिट राइट. कॉइन्स में वैसे करके WazirX इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज उन्होंने डाला था। A lot of people, ठीक है बहुत टाइम से है, we'll invest in through this exchange कर करके they started obviously investing this through this portal. तो recently, and this is I think July 18th को there was a very significant hack in WazirX on the wallet. राइट. और इसके जो wallet होते हैं in which they custody user के funds, that was hacked by an unknown. There is news being spread कि it can be from Lazarus Group, which is North Korea based, and बोलना ये है कि it might, I mean, they don't negotiate after they hack, and once your cryptocurrency is gone, it's gone. Like they've taken it and gone. They don't negotiate. So basically हुआ क्या कि साइबर WazirX का कहना है, पहली बात, there are two sides of this story, actually three sides of this story. एक है WazirX का, सेकंड है इनके कस्टोडियल पार्टनर लिमिनल का, एंड थर्ड जो है वो अब तक किसी को पता नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू द यूजर फंड्स. सो फर्स्ट स्टोरी है when WazirX is telling that there was a cyber attack in one of their multi-sig wallets involving loss of funds exceeding $230 million. That's almost close to 2,000 crores. Sorry, 2,000 crores, yeah. This wallet was operated utilizing services of Liminal's digital asset custody and wallet infrastructure from Feb 2023. अब उन्होंने कैसे वॉलेट कॉन्फ़िगर होता है एंड ब्रीच कैसे हुआ है सब दिखाया है, इसमें लिखा है इन दिस ट्वीट थ्रेड, यू कैन चेक इट आउट. एंड उसके बाद में they do go on to mention, despite us taking all necessary steps to protect the customer assets, the cyber attackers appear to have possibly breached such security features and the theft occurred. मतलब इन्होंने अपने हाथ साफ कर दिए, बोल रहे हैं कि दिस इज अ फोर्स मेजर इवेंट बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो फर्स्टली मल्टी सिग का एग्जांपल और एनालॉजी ये है कि फॉर दोज ऑफ यू हु हैव वॉच्ड हैरी पॉटर, इसमें जो हॉर्क्रक्स होता है where Voldemort has several souls kept in different places and locations. That is similar to a multi-sig arrangement where you have the key to your funds stored in multiple places in multiple locations.
यहाँ पे क्या हुआ, majority of the keys were with WazirX and the transaction signing off or the last verification जो होता है, that was with Liminal, or at least from what I've read in this thread, that's what I understand. Right. उसके बाद क्या हुआ था, there was no checks being done apparently and बहुत time तक. So the hacker जो है, they created, so Ethereum's protocol is little different than Bitcoin. Bitcoin ka is everything is on chain and it is it's done on a user level. Like if a user Right. has private, that's it. Ethereum ka there is something called account based क्या बोलते हैं structure, which I'm not very well aware of. अगर आपको idea है तो Avik share. No, I don't have any idea. Okay, so I mean, we are not getting into the depth of it. There are other people in the ecosystem who have debunked कि कैसे होता है. Please go check out their videos as well. You'll get an idea. But the idea is the hacker got hold of the smart contract of WazirX का जो भी wallet था ये. They overwrote the rights, the admin rights. उनके पास कंट्रोल आया, and then they told to transfer all of the funds from this specific Ethereum wallet, ये affected with Ethereum address, to their own wallet, मतलब hacker का wallet. And ये करते ही उन्होंने, their choice of cryptocurrency was Ethereum and not USDT, because USDT comes under Tether and वो they are known to freeze accounts in the past अगर ऐसा कुछ होता है. So their choice of currency was Ethereum. तो this is WazirX side of the story. Liminal का ये कहना है, okay, sorry. WazirX in response to this on July 19th has have reported to Financial Intelligence Unit and CERT Inc, जो governing bodies होते हैं and oversight bodies होते हैं इंडिया में for anything related to digital fraud, etc. So, and they have also reached out to 500 plus exchanges to block अगर ऐसा कोई transaction होता है when they want to offload, the hackers want to offload their cryptocurrency from the market. Now the thing is, hackers are known to have a China में इनका OTC setup होता है, over the counter trades होते हैं, where they can offload without getting involved in in like अगर दूसरे exchanges, global exchanges में उनको sell करने की जरूरत नहीं पड़ती, because they'll go there, they'll offload the cryptocurrency and they will get the proper market है ना, मतलब इसे जैसे हैक फंड का मार्केट है, yeah, outside the jurisdiction. yeah. So WazirX ने अपना plan of action तो दिया है कि immediate plan of include tracing of stolen funds, recovering customer assets, conducting deeper analysis. तो ये करते रहेंगे, but सबके like जो भी WazirX के customers थे उनको बस यही question and doubt है, are our funds safe? And इनके पास जो था, like if you look at their proof of reserves जो उन्होंने जून में publish किया था, they had close to 470, if I'm not wrong, $470 million का इनका complete reserve था. उसका half चोरी हो गया है, that is 230 million has gone by the hackers, is taken. तो अभी जो भी बचा है, that is all they have. Now what will they do with it? Will they, what could be the possibilities? आगे क्या हो सकता है? We are yet to know. They have not mentioned anything about that. And you ऐसे बोलने को तो बोल दिए कि okay, we have taken these steps. But user का जो ये होता है कि whatever funds you've put in WazirX, are they safe or not? Nobody knows as of now. ये clarity नहीं है. This was WazirX का side of the story. Liminal का ये कहना है, we can confirm that Liminal's platform is not breached and Liminal's infrastructure, wallets and assets continue to remain safe. It is also pertinent to know that all WazirX wallets created on Liminal continue to remain secure and protected. Meanwhile, all malicious transactions to the attacker's address have occurred outside of Liminal platform. तो यही बात हुई. WazirX is pointing fingers at Liminal, Liminal is pointing fingers at WazirX. एंड अल्टीमेटली इन सब में लॉस हो रहा है यूजर्स का एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रहा है यूजर्स को. सो दैट इज द एंटायर जिस्ट ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड फ्रॉम जुलाई 18th ऑनवर्ड्स. एंड अगर आप मुदित गुप्ता के ट्वीट थ्रेड पे जाकर के देखोगे, ही broken down कैसे हुआ था एग्जैक्टली, कैसे हुआ था. सो यू कैन चेक दैट आउट आल्सो. Also
ये जो चोरी हुई इन मेरे साइड से नॉइज आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है। Can ओके you- ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई एम म्यूटिंग। ठीक है। तो जो भी हुआ था, लाइक whatever hack was done, in that originally 96 million of Shiba Inu, 52 million in Ethereum, $11 million in Matic Polygon were taken, were stolen. And yeah, I think the Pepe token, जो almost $7.6 million का worth था, it has already been offloaded and वो पूरा convert हो चुका है। बाकी हो रहा है at the moment. तो अगेन मुदित गुप्ता ने प्रॉपर एनालिसिस शेयर किया एंड या तो और एक बंदा कॉल्ड जैक एक्सबीटी, ही ऑल्सो ट्राई टू डिग इन, एंड उन्होंने भी बोला कि अगर ऐसा है तो हु इज द पर्सन जिस लाइक इतना स्ट्रिक्ट, आई मीन इंडियन एक्सचेंजेस में इतना स्ट्रिक्ट है कि केवाईसी करे बिना यू कैन नॉट enter the cryptocurrency exchange, or you can't exit, like on ramp off ramp नहीं हो सकता। सो उनके मुताबिक ये बोलना है कि KYC means nothing, as KYC verified accounts can be easily purchased online for less than $100। So at the end of the day, what has happened is, जितना भी ये बोलने की security measures बहुत strong है, exchanges always need to be treated carefully, especially in the cryptocurrency industry, because this is what happens. Because अगर if this can happen for a reputed exchange which has been functioning for a while now, it can happen to any other exchange which is in the Indian space. So this is a very alarming news, and it needs to be taken very seriously. Self custody ke bare mein, please learn about it. There are many resources online, and we keep stressing on that fact, and we keep talking about it on our channel whenever possible. राइट। Yeah. तो आपका कुछ कहना है इस पे? नॉइज तो नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा but थोड़ा it's okay. चलेगा? हाँ, ठीक है। सो इसमें लाइक मुझे तो एक्सपेक्ट था ही, लाइक आपको पता हो तो वजीरेक्स वाज लाइक, कोई कहता है कि बाइनेंस का ही, लाइक बाइनेंस इज अ ओनर ऑफ द वजीरेक्स, और बाइनेंस का सब कंपनी है। और तो बट जब बीच में जब वजीरेक्स और बाइनेंस का कनेक्शन टूटा था, लाइक यू वर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर बिटवीन वजीरेक्स एंड बाइनेंस लाइक 2 years ago, yeah, तब मुझे yeah, लगा कि लाइक वजीरेक्स में रखना सेफ नहीं है। लाइक आई कीप सम ऑफ माय एसेट्स ऑन बाइनेंस, आई यूज्ड टू कीप, बट आफ्टर एफटीएक्स में भी थोड़ा सी वो हो गया। एफटीएक्स जो 2022 में, नवंबर 2022 में जब एफटीएक्स का ही ऐसा ही कलेप्स हुआ था, लाइक वो तो इट वाज नॉट अ हैक, बट वो उनका वो क्या हुआ उनकी था, लाइक मिसमैनेजमेंट ऑफ हाँ, फंड्स थी उनका वो। मिसमैनेजमेंट, दे यूज्ड मतलब गलत फंड तरीके से यूज किया। तो लाइक वी कैन नॉट ट्रस्ट एक्सचेंजेस। माउंट गोक्स भी पता है सबसे पहले हुआ था। सो आई थिंक हिस्ट्री इज फुल ऑफ दिस ट्रस्ट, क्या बोलते हैं, लाइक एक्सचेंज, लाइक इफ यू पुट ट्रस्ट देन देयर इज नो रेगुलेशन, देन दे विल डेफिनेटली, लाइक योर फंड्स आर नॉट सेफ। करेक्ट। सो सो दैट्स द थिंग, मतलब इतने सारे हम्म एग्जांपल्स रह चुके हैं, एंड पीपल टेंड टू गो एंड डू दिस। हम्म देयर आर हम्म couple of exchanges in India which allow हम्म, self custody, obviously उसमें KYC है, but that's not an issue। राइट तो ट्रैकिंग के मामले में if they are so hell bent on tracking कि कहाँ है source of funds etc, they can do it। So but the importance is self custody and not relying on these exchanges to hold your coins in any case। राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक भाविक मेंशन, माउंट गॉक्स का एक था, FTX, BlockFi, सेल्सियस, ये सारे लास्ट, माउंट गॉक्स के अलावा ये सारे चीज हुए हैं 2022 और 24 के बीच में। सो इतने सारे एग्जांपल्स होने के बावजूद, इफ पीपल आर ब्लाइंडली गोइंग एंड पुटिंग देयर मनी ऑन एक्सचेंज, लार्ज सम्स ऑफ मनी रहा था, ऐसे और नहीं पता है कि दिक्कत क्या है, उसको लाइक रख दिया। लाइक हाँ, दिक्कत क्या है कि एक बिटकॉइन लोग चलो शायद सेल्फ कस्टडी करते होंगे थोड़ा बहुत, पर जो अल्ट कॉइन्स है ना, वो तो कोई सेल्फ या कस्टडी नहीं करता, वो एक्सचेंज पे रखता है। करेक्ट, क्योंकि कई करेक्ट, बार तो ज्यादातर ये लोग, मतलब रिटेलर्स लोग के पास कितना अल्ट कॉइन होता है, लाइक 10,000, लाख, 15-20,000, या 50 लाख, मतलब लाख 2 लाख का मैक्सिमम होता है मेजोरिटी लोगों के पास, 90% पब्लिक के पास। अब वो लोग हर एक छोटे छोटे कॉइन, लाइक 10,000 की उन्होंने 50 कॉइन ले रखे, 10 कॉइन ले रखे, अब वो शिफ्ट करने जाएंगे, ट्रांसफर करने जाएंगे, तो उनकी फीस ही इतनी लग रही है यूएसडीटी बारबीटर में, तो वो लोग, और एक एक को कहाँ ट्रांसफर करे वो। सो वो या करते भी नहीं है, और फिर बाद में एक हैक हो जाता है ये।
सो लाइक इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम ये सब बहुत रिस्की है। अपना बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन सीखो, सेल्फ कस्टडी सीखो, बहुत इजी है। ब्लू वॉलेट यूज कर सकते हो, स्पैरो यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रम, ननचक, ये सब वॉलेट से। डेस्कटॉप के लिए स्पैरो इज गुड, मोबाइल के लिए ब्लू वॉलेट है। और लाइक आप कौन सा प्रेफर करते हो मोबाइल के लिए? बता डेस्कटॉप दो। मोबाइल के लिए देयर इज ब्लू वॉलेट ही सेफ है। लाइक ब्लू दिस इज ऑल इन बिटकॉइन ओनली कॉन्टेक्स्ट, दूसरे कॉइन्स राइट। का हमें पता नहीं है एंड बोलते भी नहीं है एंड वी डोंट हम्म। सजेस्ट और अगर अबाउट किसी को जानना हो तो लाइक बीटीसी सेशंस करके यूट्यूब चैनल है, लाइक आपको इट। सब वहां पे मिल जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश, लाइक हिंदी इंग्लिश में है वीडियो, अगर समझ में नहीं आता तो आप ट्राई करो, देखोगे वो डेमो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कैसे यूज करना है। लाइक वो सारे वॉलेट्स के डेमो दिखाते हैं आपको, कैसे वॉलेट बनाना है, कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना है, चेक करना है सब। तो बेटर है वो सीखो। और और लाइक हमारी सिंपैथी तो उनके साथ है ही जिसने फंड लूज किया है। क्या कर सकते, गवर्नमेंट भी हाथ यार खड़े कर देगी अनफॉर्चुनेटली, अब ये। या आई डोंट थिंक कुछ अभी हो सकता है बिकॉज जो गए हैं फंड्स लाइक इट्स नॉट एक्सचेंज अ इज स्मॉल। गॉन राइट, या WZX विल बी एज डेड। लाइक यूएसडीटी इज ट्रेडिंग एट 72 रुपीज देयर, और कोई मतलब नहीं है, विड्रॉ भी कर नहीं सकते। 72 रुपए में डॉलर मिल रहा है, क्या करेंगे लेके? यूएसडी लेके क्या मतलब, क्या करेंगे? या कॉइन लेंगे। लेकिन अदर भी अनदर हैक हो सकता है, पता है अभी फिर से। लाइक जो रिमेनिंग फंड भी जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं जा सकता? और विड्रॉ हो तो सकता करने नहीं दे रहे जिसका फंड है। लाइक आई हैव मेरा भी कुछ पैसा था उसमें, 3-4 हजार रुपए में पढ़ ले रखे थे शुरू से ही, उसके बाद मैंने कोई छुआ भी नहीं था। मतलब पढ़े रहने दो, देखते हैं या क्या होता है। तो वो गए मेरे ख्याल से, अब वो विड्रॉ तो करने नहीं देंगे। या सेल करने देंगे, वो भी देखना पड़ेगा। सेल तो एंड सेल होगा तो इन्होंने मैं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली जानबूझ के आईएनआर एंड क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स रोके हैं। आईएनआर इसलिए रोका है क्योंकि जो विड्रॉल स्टॉप है क्या? हाँ दोनों आईएनआर स्टॉप भी है। बंद है? बोलो फिर तो बिकॉज गया ना ऊपर फंड। जो भी अगर बचा कुचा आईएनआर है वो भी चला हाँ जाएगा इफ पीपल गेट हाँ स्कैर्ड एंड व्हिच दे हैव गॉटन स्कैर्ड एंड जो इसलिए प्राइस ड्रॉप अगर देखोगे वजीर एक्स में ऑलमोस्ट 58 का राइट। नॉर्मल चल रहा था, 52 हाँ हाँ 58 के बीच में, अभी तो बीटीसी उससे ना। भी गिर चुका है। या राइट 45 राइट के राइट। आसपास इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो। वो जीरो को मतलब नहीं है, मतलब मैं 10 रुपए में भी ना खरीदूं, राइट? या है ना, क्योंकि वो या कॉइन है ही नहीं, वो तो बस ऐसे ही क्लेम है। तो सो खैर दैट इज द अनफॉर्चुनेट इवेंट व्हिच हैपेंड लास्ट वीक। लाइक इंडिया का बिगेस्ट है, राइट? इंडिया का बिगेस्ट लॉस या या इन क्रिप्टो एंड स्पेस। दिस विल ऑब्वियसली हैम्पर जो भी राइट प्रोग्रेस हुई थी अब तक। ये जो भी बोल रहे थे कि राइट क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है, वी आर राइट प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन, दिस हैज टेकन द होल स्टेप 4-5 स्टेप्स बैक, दिस राइट पर्टिकुलर इंसिडेंट। क्योंकि अगर कोई इसके बारे में बोलना भी चाहेगा, who wants to advocate for cryptocurrency in general as a whole, राइट they won't be able to do so because the first reaction of the government or the any body will be, देखो ऐसा हुआ है, how are the customers fund safe and तुम क्या कर सकते राइट हो उसके बाद, how can you return it। राइट राइट सेबी के इतने सारे regulations हैं and we'll come to that fact कि अभी वहां पे क्या सीन चल रहा है सेबी एंड आरबीआई को लेके। सो इतना सब होने के बावजूद the players or the exchange owners etc they don't have an answer कि कैसे रोक सकते हैं। इससे बोल देंगे तो फंड्स गया तो गया, we can't do anything, we'll declare bankruptcy and say sorry, because which has happened in the past, वर्ल्ड के साथ यही हुआ था। तो अगर ऐसा होता रहा then might as well restrict it to the maximum level, टैक्स और बढ़ा देंगे, एंट्री लेवल्स और इंक्रीज कर देंगे, एंट्री बैरियर rather। So this is not a good sign in general for everyone who's लाइक अभी registered। लाइक बिटकॉइन ट्रेडेड एट लाइक कहाँ पर पता है? लाइक 38 लाख तक गया वज्र एक्सचेंज में। नाउ इट इज एट 46 लाख। और लिक्विडिटी एकदम ड्राइड अप है, खत्म है लिक्विडिटी। लाइक पीपल आर बाइंग 0.001 बिटकॉइन, 0.007 बिटकॉइन। लाइक इट इज टोटली थिन। अगर मैं लाख रुपए का ऑर्डर मारूंगा ना तो बिटकॉइन प्राइस सीधी शूट अप हो जाएगी इतना। और खरीद के यूएसडीटी इज ट्रेडिंग एट 68। करेंगे भी क्या लोग, दे कांट नहीं विथड्रॉ, क्या दे कांट ट्रेड, मतलब। बस वो पेपर ट्रेडिंग के बराबर है वो। हाँ सो इट्स लाइक मेरे ख्याल से गया है एक्सचेंज, ये सब गया है, मेरा फंड भी गया। कमिंग टू जो सेबी का बोल रहा था मैं, नाउ सेबी का एंड आरबीआई का ये कहना है कि सेविंग्स, इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स जो थे, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम एफडी व्हिच वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सेफेस्ट एसेट इन्वेस्टमेंट बाय older generations. Now it has moved to mutual funds and राइट speculative activities like futures and options.
नाउ इसके लिए भी एक्सपेक्टेड ये है कि जो 23rd को बजट होगा उसमें देयर विल बी सम यू नो वेज टू कर्ब दिस, एंट्री बैरियर्स बढ़ा देंगे और दे विल डू समथिंग. सो इन द एंड व्हेन यू लुक एट इट, अगर आप ओवर रेगुलेट करोगे देन यू विल हैव दिस. अब तक तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, जो भी नामचीन इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स वगैरह सब बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड सही है. नाउ दिस हैज बिकम अ कॉन्वर्सेशन, लाइक अ कॉज ऑफ कंसर्न, वेयर सेविंग्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम बैंक एफडीज टू म्यूचुअल फंड्स. तो विच इज द राइट वे, बिकॉज आपका इन्फ्लेशन इज एट अ रैपिड पेस, एंड अगर आपको इन्फ्लेशन से को बीट करना है, यू कैन नॉट कीप इट इन एफडी. तो सेव करने का इंसेंटिव ही चला गया है because of flawed money. Now, what will you do? What does a normal person do? They will go and chase for higher returns. And वो अगर आपको म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, like through SIP वगैरह आपको मिलता है, I mean you can do your own अभी मिल रहा है, पर ये भी इसका भी टाइम एंड होने वाला है, होगा ही. Yeah. तो all of these things indicate to one fact कि अगर आपका money sound नहीं है, then you will have regulation, and उसके बाद over regulation, and उसके बाद some more regulation to curb losses. And ये losses curb करने के चक्कर में you are not being allowed to participate in certain activity. It could be speculative or not. People could have burned their fingers in futures and options, and they've learned their lesson and वापस चले गए. But what is the definition? All of this leads to the fact and conversation कि what is the definition of free market? And free market का concept क्या है? India is not a completely free market, जितना भी बोल लो. There are a lot of tapeisms and there are a lot of restrictions when it comes to trade, like in every industry. तो free market का according to me what I think is जितना भी two parties, अगर Bhavik and me, for example, I am providing some value to Bhavik. Bhavik is setting the price कि उसका कितना होना चाहिए. I am comparing it with the rest of the people in the space. And मैं भी बोल रहा हूँ, then we negotiate and we set the price and हो गया. That's free trade between us. इसके पास like government का क्या मतलब, any governing body, I'm not just talking about India, का क्या scope है? They can, okay ठीक है, oversight कर सकते हैं कि there is no complete fraud, कि I am not cheating Bhavik, Bhavik is not cheating me. तो वो बेसलाइन सेट करने के बाद में दे कैन फाइन एस्टैब्लिश योर इम्पोज टैक्स जितना भी है वो फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस फॉर ओवरसाइट, देन अपना काम करो. हियर व्हाट इज हैपनिंग इज, नहीं आप कौन सा मटेरियल ट्रेड कर रहे हो, कितना ट्रेड कर रहे हो, व्हाट इज द क्वांटिटी, यू आर गेटिंग इनटू द वेरी डेप्थ ऑफ एवरीथिंग दैट यू भाविक एंड आई आर डूइंग, और एनी टू पार्टीज इन any country are doing rather for trade. So that is becoming a sort of a issue when it comes to a long-standing trade के terms. What do you have to say to that, Bhavik? आपका कुछ कहना है इस पर? Like ये shift मुझे ये जो hyper bitcoinization है ना, उसका ही like it is the part of like if someone writes a book after like 20 years, तो तब वो सब ये दिखेगा कि देखो कैसे कैसे लोग सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की साइड जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं, राइट. मतलब अभी मार्केट कैसा भी हो, हर महीने लाइक माई सर्कल्स में, आपके सर्कल्स में भी होंगे जो हर महीने फिक्स अमाउंट की SIP चालू ही है. मतलब बस रिटेल इतना पैसा डाल रहा है, और आप देखोगे ना अगर, तो सारी कंपनीज पब्लिक होने में लगी हुई है. जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो IPO डालो, बूम, 10x 5x ग्रोथ मिल रही है. बस हर कोई एग्जिट लिक्विडिटी चाह रहा है अभी हाई वैल्यूएशन पे. तो एक एक्चुअली ये बूम है और ये चलेगा, मेरे ख्याल 4-5 साल चल सकता है, और टूटने का तो अभी भी टूट सकता है, कोई भरोसा नहीं है. बट हाँ, ओवरऑल ये सारा स्पेकुलेशन ही हो रहा है, और टैलेंट्स लोगों का वेस्ट हो रहा है ना, लाइक देखा जाए तो सही जगह जहाँ पे यूज होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है. लाइक 18 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, है ना. मतलब क्या, लाइक इट्स जीरो सम गेम, और इतना लुक्रेटिव है कि मतलब कि लोग इसको ऐसे नहीं, मतलब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आसपास में हर कोई पैसा बना रहा है. कोई बना रहा है, कोई नहीं कर रहा, मतलब कोई IPO से कर रहा है, कैसे ना कैसे कर रहा है. सो टैलेंट एक्चुअली वेस्ट ही हो रहा है, और लाइक वी हैव द सॉल्यूशन बिटकॉइन, जो लाइक मनी फिक्स कर दो तो सब सही हो जाएगा. Again, disclaimer, we are not asking you to buy, we are asking you to learn about it. उसके बाद में आप अपना you can do your tally and reasoning कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. So yeah, coming to the next topic in terms of regulations, recently July 17th को not very
long ago. Karnataka government ने mandate किया था local reservation and appoint government officer in every company to monitor. इसके चलते क्या हुआ? A lot of industry backlash happened, and NASSCOM जो है, which is a governing body for all the IT organizations, if I'm not wrong, opposed Karnataka's local job reservation bill and warned them against firms' relocation. So the thing was, जब भी as soon as this bill was passed and it had come into effect, soon after that you saw different countries, Hyderabad, Mumbai, Pune से भी, I think there was an Cities. announcement saying कि please come and invest in our states. Right. ऐसा कोई restriction नहीं होगा, and there is no concept of ऐसा reservation वगैरह. So 6 घंटे के बाद ही this bill was scrapped, and उन्होंने बोला कि we need some more time to deliberate about this topic and we'll come back. So Right. that is the thing कि क्या हुआ था in terms of this bill being passed. Another announcement which has come yesterday is that Karnataka government's move to increase working hours to 14 hours a day, which is close to 70 hours a week, is being called out by unions, and they're telling IT unions, and they're telling it is as good as modern day slavery. Now, इसको दो तरीके से देख सकते हो, hustle culture, development, ज़्यादा तरक्की, more GDP, all of that jazz. And on the other side, when you look at it, the middle class and the lower strata of the society, they will keep working to increase funds and revenues for the company. And Right. जो cream है layer at the top 1%, 2%, they will enjoy the fruits of these people's labor. And वो अपना policy make करेंगे, चलाएंगे, and all that is expected of the middle class people is to work and slave away their years. That's another way to look at it. So yeah, this is what over regulation does to any market, I feel. Yeah, that is what is happening in Karnataka. जो रिजर्वेशन का बिल है, लाइक इट्स अ नॉनसेंस बिल है ना, कोई Yeah, मतलब नहीं है कि मतलब टैलेंट है वो भागेगा. Correct. लाइक वो जो आई थिंक आपने कवर नहीं किया ना, अभी हमने नेक्स्ट में आएगा कि लाइक लोकल्स को मैनेजरियल और ये सब पोजीशन में 50% रिजर्वेशन रखना का बिल आया था, और बाकी नॉन स्किल्ड और ये सब जो जॉब्स है उसमें 75% रिजर्वेशन फॉर कर्नाटका लोकल. और लोकल की डेफिनेशन भी उन्होंने ये दी है कि इट इज लाइक 15 साल से इधर होना चाहिए उनके सर्टिफिकेट में, लाइक कन्नड़ा लैंग्वेज होना चाहिए, और उनको एक टेस्ट भी पास करना है. तो या दिस थिंग. सो ये मतलब इससे तो हाँ, और तुरंत ही विरोध हुआ, काफी विरोध हुआ. ये 12 घंटे में बिल भी वापस ले लिया. पर कहने का मतलब कि मतलब यही देखने को मिलेगा. मतलब देखो अभी स्टेट भी ऐसी राजनीति कर रहा है, मतलब इससे नुकसान स्टेट का ही होगा. एकदम शॉर्ट साइटेड बिल है ये. अभी तो चलो यहाँ पे लोकल लोग जो 90% माइनॉरिटीज है वो खुश हो जाएंगे, हमें जॉब मिलेगी, पर वही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और विद इन 4-5 साल में सारी कंपनीज लॉस मेकिंग हो जाएगी, और उनकी भी जॉब जाएगी सारी. तो उनको लाइक जब कोई लाइक जो काबिल लोग है वो इसमें काम करेगा तो वो 100% और भी जॉब्स क्रिएट करेगा, राइट, और भी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगा. तुम कभी रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए. लाइक सो हो रहा है, कर्नाटक गवर्नमेंट इज डूइंग, बहुत हद पार कर रही है, लैंग्वेज से लेके काफी लैंग्वेज भी मैंडेटरी कर रही है ना. सो लाइक व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम सीएम. करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है साफ कि अ पर्सन कैन reside and is free to practice trade in any state of the country. कॉन्स्टिट्यूशन बिल हुआ ना ये फिर. करेक्ट. तो अगर उसके खिलाफ जाकर के ऐसे बिल्स पास हो रहे हैं, then it is concerning. So yeah, ये चल रहा है यहाँ पे. ये सारी सोशलिस्ट पॉलिसी हुई ना, सोशलिस्ट गवर्नमेंट की एजेंडा सब वही हुआ. ये फ्री मार्केट कंपटीशन नहीं है, प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं कर रहे हो तुम. मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनीज में अगर जिसके 100 से ज्यादा एम्प्लॉई है उनको कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा उनकी HR बॉडी में, इंटरव्यूज में. लाइक वो डिसाइड करेगा, वो मतलब एक वो भी रहेगा इंटरव्यू में जिसके कंपनी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉई है. लाइक उनका क्या सही होना चाहिए. प्राइवेट कंपनी को अपने आप क्यों, व्हाई डू यू इंटरवीन इन प्राइवेट एंटिटीज, which is completely fair. And वो जो अगेन ये वही बात आ जाती है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, राइट. मतलब हमको ऐसा नहीं है कि हम फेवर में, सोसाइटी के लिए अच्छी बात है ये. लाइक अगर तुम्हें प्रोस्पेरिटी चाहिए तो सोसाइटी के लिए
इकोनॉमी के लिए, सबके लिए अच्छी चीज है हाँ, कि प्राइवेट को अपने हिसाब से करने दिया जाए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। थर्ड पार्टी जब भी आता है, दे विल कॉज इंटरफेरेंस, एंड इन दिस केस द थर्ड पार्टी इज द गवर्नमेंट और द पॉलिसीज व्हिच दे आर फ्रेमिंग रादर। तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल। चलिए, अभी तो और ज्यादा दिखेगा, देखते हैं अभी भी कैसा होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट करती जा रही है, लाइक कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, लाइक पहले दे आर एनफोर्सिंग हिंदी लैंग्वेज, लाइक एनीबॉडी इज कमिंग इनटू द स्टेट शुड लर्न रीड राइट इन हिंदी, और ये दरखास्त कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हिंदी में बात ना करें, कन्नड़ में ही बात करें। सो लाइक दिख रहा है, मतलब वो जनता को ही लैंग्वेज में ही लड़ा रहे हैं। कहीं तो जातियों की लड़ाई चल रही है, कहीं धर्मों की लड़ाई चल रही है, यहाँ पे भाषा की लड़ाई चल रही है। भाई भाषा एक बात करने का तरीका है, कोई भी बस काम होना चाहिए ना, लाइक, पर ये यही कि बस तुम बात नहीं करने देंगे तुम्हें, लाइक यू कैन नॉट एक्सचेंज योर आइडियाज, और जब ये नहीं होगा, जब एक्सचेंज नहीं होगा, तो कहाँ से ग्रोथ आएगी, राइट? एक्सचेंज होनी चाहिए, आइडियाज की वैल्यू की एक्सचेंज होनी चाहिए, दैट शुड बी फ्री, एंड गवर्नमेंट का काम है सब फ्री करना, लेकिन ये एकदम फ्रिक्शन पे फ्रिक्शन डाली जा रही है यार गवर्नमेंट, लाइक, और ये सब फियाट मनी का नतीजा है। सारे स्टेट में दिख सकता है, हर जगह दिख सकता है हमें, चलो कर्नाटक में दिखा है, हर जगह दिखेगा हमें, दिख ही रहा है हमें, मतलब भारत में कैसी राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे। सो आई थिंक वी विल सी इट फॉर अनदर नेक्स्ट मे बी 5-10 years, धीरे धीरे फिर पता चलेगा। योर वीडियो इज ऑफ, या what is the next news? The next one is a very promising news for Bitcoin specifically, because 25th to 27th, which is this weekend, matlab Thursday to Saturday, in the coming Thursday to Saturday, next year, it is slated, it is speculated rather, that Trump, who is the active candidate for presidency this year, is set to announce USA's Bitcoin strategic reserve in the conference, at the Bitcoin conference, which is happening this week. Dennis Porter jo hai, he's the co-founder of Satoshi Act Fund, and he has changed 4 bills into laws. That means he's let the government, just individual state governments hote hain, unko help karke he has passed those Bitcoin rights laws in those 4 states. So this is coming from his sources, which he believes to be very credible, and which can happen, who knows. And he has laid out a proper plan ke, emergency financial operations ke liye US agar ye karti hai, the ESF ka matlab kya hota hai? Exchange Stabilization Fund. So every country has this ideally, and what is happening with US also is they have this, and abhi kya like what will happen is what he has detailed in this thread, how Bitcoin could be added to the ESF. Now this will be a new thing. ESF could start by holding Bitcoin as part of its reserve asset, similar to how it holds foreign currencies and gold. So it will be a basket of assets, not just Bitcoin, which is impractical. Wild swings हुए price के, then it will impact. Gold is comparatively stable, so if there is equal parts of gold and Bitcoin, it will be very beneficial for the ESF fund. Now, ये Bitcoin interventions, ESF could use Bitcoin and its interventions to stabilize the dollar or other currencies. So it's a proper दिया हुआ है step-by-step roadmap on how it can be done. Liquidity provision. During periods of financial stress, ESF could provide liquidity in Bitcoin to markets or institutions in need. Again, फिर policy की बात आती है. Any move to integrate Bitcoin into ESF would require close coordination with financial regulatory bodies to ensure process is smooth. So these plans are already in his mind, and I think he will be a very good person in US to champion this. And agar when announcement leads to Bitcoin being a strategic reserve asset for US, and so in the near future, what we see, Bhavik and I also have spoken about this, ke aage ke 6 to 8 months are very critical in terms of what is happening in the Bitcoin space specifically. Next week there are things which is happening, like Ethereum ka bhi ETF launch ho raha hai. And one more thing, WazirX का hack जो हुआ है, सिर्फ Ethereum गया है 1 week before the Ethereum ETF launch in US.
So it's surprising and shocking for that अच्छा to happen. ETF आने वाला है क्या नेक्स्ट वीक? Yeah. मतलब Okay. ये वीक in a couple of days, 23rd या 25th तक आ जाएगा. So that is Mhm. another thing to note in the WazirX context. हाँ, Mhm. but the next 6 to 8 months Mhm. is what we'll see a massive, we will see a decent rally in Bitcoin, specifically because of the things, geopolitical aspects. One of the things is this announcement, which may or may not happen next week. उसके बाद में आता है आपका presidential elections, which will have start from November, if we are not wrong. Third आता है आपका rate cuts, which will also happen from September, then November, December. September तो है, उसके बाद में December and Jan, I think, one of those months. तो वहाँ पे rate cuts होंगे US में, which will fuel liquidity, and that liquidity goes into markets, and markets maybe it will move on to risk assets like Bitcoin, which will have an impact on its price. So this is the plan for the next 6 to 12 months, कह लो, and it is space to watch out for specifically. Right. And again, Trump has been very bullish on Bitcoin, or he knows. See, this is not us or anyone in the Bitcoin space. They do it. It is very important to note to not simp for Trump. He's not one all be all. He does not affect, and he does not. Bitcoin doesn't need Trump. It's the other way around. It Right. is very much important to note that these politicians only fuel the the price or whatever you want to call it, but at the end of it, they are pandering to the Bitcoin voters. So jo kuch bhi he's doing for Bitcoin, it needs to be taken with a pinch of salt, and it has to be considered that he's doing it for the votes for himself, which is partially true. Because there is no other reason, because he knows there's a significant amount of people at the Bitcoin conference जिनका सिंगल इशू है, लाइक अगर वो सुनेंगे कि बिटकॉइन के हित में यू आर टॉकिंग, दिल गो सिंपल दैट, और कुछ नहीं चाहिए. And that is why he is talking very positive. And obviously he's met the cryptocurrency miners also in the past weeks, so he knows what it is and what is the potential of Bitcoin mining. We hope he does. So he says that US must embrace Bitcoin to compete on the world stage. China is already into it, and that is why they also need to be a major part of it. And इनके पास already seized reserves हैं almost 8 billion के आसपास, $8 billion Like worth. around 2 lakh Bitcoin, right? है ना? Around 2 lakh Bitcoin उनके पास. So ideally, I mean, you need an executive order for changing that to a country's reserve asset. But if that is done, they will hold the largest asset in the world, and then every other country will need to do some action, take some action to get the Bitcoin currently in the market from the miners. So it's a race. It'll start a race of acquiring Bitcoin in the next few months, Right. depending on his announcements. Yeah, that was my rant on this. काफी अच्छा लगा सुन के ये न्यूज़. This was very promising. पर फास्ट हो गया, लाइक विद लास्ट इस साल में जो बिटकॉइन के लेके जो बात हो रही है ना, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में. इंडिया में भी बात हो रही है, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो सीधा इसको स्पेकुलेटिव बता रहे हैं, प्रॉपर पोंजी पता नहीं, मतलब नेगेटिव ही दिखाने में लगे हुए हैं. बट यूएस में काफ़ी लाइक ईटीएफ से लेके देखो तो जो यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और इवन ट्रम्प, लाइक ट्रम्प, समझ रहे हो, ट्रम्प इज द लाइक ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मर, लाइक वो ऐसे कैंडिडेट नहीं है. और अभी तो लाइक आफ्टर द शूटिंग ऑफ असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑफ ट्रम्प काफी चांस बढ़ गया उनके यहाँ, लाइक ही कैन बी द यूएस, अगर कल इलेक्शन हो जाए तो ट्रम्प विल बी द प्रेसिडेंट, राइट. पर अभी टाइम है 3-4 महीने, तो कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अभी पूरा उसका माहौल है. नहीं, बट बाइडेन का भी अगर आप देखोगे तो ओबामा इज टेलिंग कि बाइडेन टू स्टेप डाउन, नहीं हो रहा है. वहां पे देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ देम कमिंग इनटू पावर. एंड लास्ट वीक हमने देखा भी था कि हाउ द प्रेडिक्शन मार्केट्स आर ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि ट्रम्प विल बी एटलीस्ट 70 to 80%, यही कहता है कि ट्रम्प विल बी बैक इन द ऑफिस. नाउ कमिंग टू वन मोर millionaire
जिनका ओपिनियन ये था, मार्क क्यूबन, he had a different stance on Bitcoin. He was telling 2019 में कि he would rather buy bananas instead of Bitcoin because that is tangible and he can eat bananas. But now he has changed his whole, situation, like his narrative on this is like, how high can the price of Bitcoin go? Remember, the market for Bitcoin is global and supply has final limit of 21 million Bitcoin. ऐसा कुछ नहीं है ना, लाइक ऐसा कुछ नहीं है बिटकॉइन जैसा, और इतना बेस्ट, इतना अल्टीमेट चीज कुछ नहीं है, लाइक नॉट एनी कॉमोडिटी, लाइक देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर ग्लोबल, बट बीटीसी इज ग्लोबल, लाइक हर रोज सरप्राइज करता है, लाइक मतलब अभी जो ऐसे आप बोल रहे हो तो मुझे लगा कि लाइक वी आर नॉट बुलिश इनफ, लाइक नो वन इज बुलिश इनफ ऑन बिटकॉइन, है ना। पर ये सब बस वही उसके वही है, मतलब ये चीज हम बस बार बार रिमाइंड दिलाती है कि लाइक डोंट फॉरगेट दिस थिंग, बहुत ही लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एंड वही इनका अगेन टू कंटिन्यू दैट, मार्क का ये कहना है, मार्क क्यूबन का, कि geopolitical uncertainty and decline of dollar as reserve currency के considering those points, Bitcoin will become a safe haven, which means BTC could be what countries and all of us look to buy as a means to protect our savings. It is already happening in countries which are facing hyperinflation, and if things go really further than we can imagine, depending on a lot of chote-mote wars which are happening in pockets of the world, BTC will become exactly what the Bitcoin maximalists have envisioned, a global currency as a safe haven asset. So Bitcoiners ka, and जो was a very strong proponent of Bitcoin, Hal Finney का, उनका मानना था, and he had predicted it back in 2010 that one Bitcoin will be worth 10 million at one point in time, like in the future. उन्होंने timeline नहीं लगाया था कि कब होगा, but he saw this come, and a lot of cypherpunks in their earlier days held on to this belief that it will happen in the near future. So we are heading in that direction. And to back this up, to back this claim, there are companies. So this is another company, publicly listed company, which has Bitcoin as a treasury strategy. तो आपका माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गया, सिमिलर साइंटिफिक हो गया, स्क्वायर हो गया, मेटा प्लैनेट हो गया, and now Bitcoin Depot. So these companies are not stopping anytime soon in terms of acquiring and holding Bitcoin for themselves. And to also facilitate and push the price forward, we see that Bitcoin ETFs have a 4 to 8 times more price influence than the miners. So miners, as we've spoken multiple times, they अभी जो recent halving हुई थी April 20th को, that is a major factor, no doubt. And after that, there in the past 180 to 200 days after the back halving, the price increases due to the supply crunch. This has happened in the past, but what has fueled this time is the ETF का demand. Because Jan 10th को launch हुआ था US में ETF. उसके बाद में after a couple of months we saw ETFs opening at multiple places. UK में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, हांगकांग में हुआ है. All these places are accumulating Bitcoin in their own whatever capacity. तो ये सब चल के we saw an all-time high before the halving itself. It reached almost 73,000 in March 13th or 14th, if you're not wrong. So what will happen after 180 to 200 days after halving is what needs to be considered, which we will see in August to December. Yeah. आप हो उधर? अच्छा, मैंने म्यूट था, मैं बोल रहा था हूँ, बट मुझे पता चला वो नॉइज आ रहा था ना, इसलिए म्यूट कर दिया था मैंने. Yeah. So that is what is happening. जा रहा था बीच में. Overall, like things are very bullish. Yeah. Or yeah, bullish. I think Bitcoin is in a continuous like 10, 20, 30 years bull market. Like अगर 20-30% correction आता है, so like it is a time to buy, time to, if you know Bitcoin, like if you, and time to buy not on exchange, like always हम कहते हैं self custody. Yeah, आजकल वो specify करना बहुत जरूरी हो गया है. ये like exchanges buy and hold on your wallet,
और वो भी Yeah. कोल्ड वॉलेट, लाइक हॉट वॉलेट भी हैक हो रहा है। अगर Yeah. आपका यू नीड साइनिंग डिवाइस लाइक सीड साइनर और कोल्ड कार्ड ले लो, लाइक यू कैन गो फॉर एनी वॉलेट आफ्टर योर स्टडी एंड ड्यू डिलिजेंस, लाइक वॉलेट भी है, लाइक कंपनी पता कोल्ड कार्ड भी हैक हो सकता है, राइट? लाइक उसमें भी कभी दिक्कत हो Correct. सकती है, Yeah. लाइक इट इज डेवलपिंग, सो बहुत ध्यान से खुद से प्रोसीड होके करो। मल्टीसिग इज गुड, लाइक मल्टीसिग इज द बेस्ट, बिटकॉइन मल्टीसिग, I think nothing is safest than Bitcoin multisig. So वो सीख सकते हो। Yeah. हम्म। Coming और to मल्टीसिग के another. लिए लाइक you only need like one seed signer, like 5,000 6,000 7,000 का seed signer आएगा one, or you can go like 3 of 5 multisig or 2 of 3 multisig, right? Yeah. Hmm. So So again, that's like one whoever option. was interested in knowing those things, do reach out Hmm. to us. We will help you out in how to set that up. And there are workshops being held in the city as well for those who Right. are interested. Please go and visit them. So Hmm. आपको hands-on experience मिलेगा कि how to use it and stuff. Right. Now, to add some more news to that, Hmm. डैनियल बैटन का ये कहना है कि इनका नहीं कहना, like there is talk about this कि 5 professors of philosophy, political science have united to advise the Democrats in US to embrace Bitcoin. Hmm. Hmm. Now, the title itself reads Bitcoin can protect freedom and help win elections. So this has happened. So बहुत कुछ हुआ है in the last week for Bitcoin specifically in US, and Right. India में unfortunately we have seen a hack. So Hmm. that's concerning. Coming to the last few topics, always mining turns out Bitcoin miners are 100% recyclable. They don't have toxic materials. They are profitable Hmm. and easy to recycle, and they have almost, अगर एक miner आप खरीदोगे, it has almost 7 years of usage. Nice. Now, compared to the mobile phones and laptops, this does not have any toxic material as such. And every part of an ant miner can be refurbished. Now, if you look at it, Hmm. mining devices भी आप देखोगे, तो you have a lot of companies like BitAxe and Solo Miner. Hmm. They literally what they do is buy a major ant miner, उसका part निकालते हैं, and each one or two chips को लेकर के they make individual devices. So it can be a business in itself where people refurbish old miners just to increase and be a part of the hash rate, मतलब the global hash Hmm. rate. It will act as a lottery ticket for anyone who wants to mine. There is no assurance कि आप करोगे या नहीं करोगे, like you will hit the block or not. But if Hmm. you have a great reward potential. So Hmm. that is also another aspect of Bitcoin mining. So Hmm. nothing in the whole mining space goes to waste per se. आपका energy which is wasted by the grids, that can be utilized. आपका methane which is flared, which is vented out as a flared gas, that is Hmm. being utilized. Waste to energy कर करके फिर you can utilize it for mining. Mining का mining होने के बाद में mining machine का क्या करें? Use it for lottery mining. So Right. everything is a closed loop. You हाँ, can. एंड वन मोर थिंग मैंने कल देखा, हाँ, रिन्यूएबल्स में जो वेस्टेड एनर्जी है रिन्यूएबल्स में भी, हाँ, वो भी बिटकॉइन माइनर यूटिलाइज कर सकता है, लाइक देयर इज अ न्यू थिंग, लाइक देयर आर वेस्टेड एनर्जी इन रिन्यूएबल्स, okay. तो वो भी किया जा सकता है। सो लाइक अभी तो काफी चीज आएगी, लाइक बिटकॉइन माइनिंग इज अ वेरी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग थिंग इन बिटकॉइन स्पेस, द माइनिंग। Yeah, yeah. Again, और उसके लिए अगर if you've done it properly ना, like ideally if you have a homestead, अगर आप farm पे हो and राइट। अगर आपको hydroelectric power है वहाँ पे, so what you can do is you can mine your own Bitcoin. You can have a farm. You can have a completely sustainable ecosystem. But it's a very far-fetched thought. A lot of people are doing that. Ireland में बहुत लोग कर रहे हैं. And you have a lot of places in different parts of the और world who are. लाइक देयर माय फ्रेंड्स, जिसको लाइक आपको पता होगा इंडिया में फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है इन देयर फार्मलैंड्स, सो Yeah. कुछ लोग हैं लाइक दे आर माइनिंग बिटकॉइन विद इन 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 फार्म्स, Oh, खेत में, okay.
Like I have some friends. तो फ्री में, like it's a free electricity and that were being like it was meant to farm, like उगाने के लिए जो सरकार देती है जो फार्म्स को इलेक्ट्रिसिटी, उससे लोग बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। तो कर सकते, करो, लाइक कहाँ चेक करने जाएंगे, पॉलिसी ऐसी है, लाइक यू फ्री दे रहे हो तो फिर वो कैसे भी आपका मॉनिटर थोड़ी करोगे, लाइक सो ये भी हो रहा है, लोग माइन कर रहे हैं फ्री में, लाइक समझ रहे हो आप, लाइक लाइक मतलब एक आपने 10 मशीन लगा दिए, 15 10 10 machines will give you 1 Bitcoin in a year maybe at this hash rate 10 S19 like one or no S Not sure, yeah. okay. एक 60 मिनट, let me 100 calculate. terahash like साल में कितना देता है? 1 million sets दे देगा? You need 1000, you need, अच्छा you need 1000 or 100 machine. 12 ant miner can give you 720,000 sats per week approximately. 12 how much is the hash rate तो for one 120 ant के miner? ओके तो ओके तो 1500 हैश इतना दे सकता है ना, 7 लाख सेट्स, या 7 लाख सेट इनटू साल में हो गया ना 36 मिलियन, अराउंड 1/3 बिटकॉइन हो गया। 12 मशीन कैन गिव यू 1/3 बिटकॉइन इन अ ईयर। ये तो पुराने मॉडल का है, अभी तो यू हैव S21 हाइड्रो पावर। सो माइनिंग तो अभी बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, लाइक अभी भी इतनी इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में है जो लाइक अभी भी लाइक 700-600 एक्साहश चल रहा है, 1 zettahash राइट, हाफ 800 zettahash, 800 क्रॉस कर गया था। आई थिंक 600 क्रॉस करके वापस भी आ सकता है, बट या सो नहीं, अभी रिसेंटली 3% इंक्रीज हुआ ना डिफिकल्टी। अभी कितना है? क्या चल रहा है? It is, it's a 595 दिखा रहा है, लास्ट 90 डेज का एवरेज दिखा रहा है, बट या ओह, इतना कम कैसे हो गया? Am I looking at the right metrics? yeah, I am opening my charts. अच्छा, My charts blockchain. So yeah, like 600 to 700 you can say, no? hash rate 655.2 Right. current exahash per second. एक साल से इतना ही घूम रहा है, मैं देख रहा हूँ, एक साल हो गया। Yeah. चलो, that's pretty much it इस हफ्ते का news, and please be careful of all the exchanges that you are trading on or investing in. बहुत अभी तो बुल मार्केट स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आई थिंक वी आर अर्ली डेज ऑफ दिस पर्टिकुलर बुल मार्केट, सो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली नेक्स्ट ईयर। Next 10 years is bull market, like at least full 10 bull market, like for Bitcoin only. So please be careful with the coins जो भी को आप कर रहे हो, like whatever coins you, and learn self custody. Cannot reiterate this enough. Please learn self custody. It's very important. Just write BTC Bitcoin self custody on YouTube और आपको काफी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जैसे हमने बताया BTC सेशंस भी काफी अच्छा दे रहा है। देयर आर साउदर्न बिटकॉइनर चैनल है, साउथ एंड सदर्न बिटकॉइनर, और भी काफी है जो अच्छे से बना रखे हैं, इजी है, देखो एटलीस्ट सेल्फ कस्टडी करो पहले, फिर बाद में नोड बिटकॉइन का नोड भी चला लेना, धीरे धीरे सीखो और सीखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट ऑन एवरीथिंग। लाइक आपके पैसों के लिए गवर्नमेंट पर रिलाई कर रहे हो और फिर गवर्नमेंट उसको डिबेस करके आपको ही लूट रही है, फिर आप ही लोन लेने जा रहे हो आपके पैसे। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते विद सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़। इस हफ्ते तो बहुत आई डोंट नो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफी फायर वीक था, लाइक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सैड था, या एंड यूएस के कॉन्टेक्स्ट में तो काफी हलचल थी, एंड नेक्स्ट वीक तो होने वाली है। आई एम होपिंग कि दैट स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट वाला थिंग कम्स ट्रू, एंड अगर वो अनाउंस होगा, किया लाइक बुलिश, कुछ बुलिश होगा, लाइक आई थिंक बिटकॉइन कैन सी अ गुड पंप, लाइक ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, लाइक कोई ट्रेड वेड मत ले लेना, अपने हिसाब से लेना, बट लाइक ये कोट मत करना। हाँ, भाविक, नो प्राइस प्रोजेक्शंस आर गिवन, नो प्राइस प्रोजेक्शन, बट या माय इंटरनल फीलिंग्स। अभी कोई सेबी का, यूएस का, इंडिया का रूल नहीं है ना, लाइक वी कैन टॉक अबाउट बिटकॉइन प्राइस, बट वी कैन नॉट टेक एनी नेम ऑफ स्टॉक्स, इक्विटी का नाम नहीं ले सकते।
बट ये जो हुआ ना वजीरेक्स का, लाइक हम कितना भी पॉडकास्टर और यूट्यूबर्स कितना भी मेहनत कर ले सिखाने की, पर अब ये जो वजीरेक्स का हुआ है ना, अपने आप सबको लाइक दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा आप। ये लाइक अच्छी ये बात होना है, जरूरी है, it's a लाइक ये good होना learning. जरूरी Yeah. है ना। माउंट गोक्स में 2013 14 11 में कितने लोगों ने उसमें कॉइन रखे थे, सोचा कुछ नहीं होगा, वो हैक हुआ तो सेल्फ कस्टडी सीखा। लाइक एवरी टाइम जब ये होता है तब सेल्फ कस्टडी की डिमांड बढ़ती है, वीडियोस के व्यूज बढ़ते हैं, है बट ना। वो माउंट बॉक्स वालों का भी देखो, they've become forced sell hodlers and उनका 100x बन गया, जो भी हाँ वो गजब यू हुआ, नो। लाइक वो दे वर एबल टू रिकवर फंड। हाँ हाँ, इंडिया में यहाँ पे आई वो डोंट थिंक कि ये कर पाएंगे, शायद इंडियन गवर्नमेंट इतना ध्यान भी देगी नहीं, पता नहीं। और बिटकॉइन हो सकता है, अभी ये पता नहीं कौन से पे कॉइन लगा रखे हैं, क्या पता है ना, शिट कॉइन ही तो है उसमें, अब वो कौन ट्रैक करेगा। करते रहेंगे, चलता रहेगा केस, उतना ही खर्चा हो जाएगा इसमें अब, क्योंकि ये 250 मिलियन तो कुछ नहीं है अभी, बिटकॉइन का कैप हाफ 1.5 ट्रिलियन है, अभी ये 10 ट्रिलियन जाएगा तो फिर कैसे कैसे हैक होंगे। सो आई डोंट थिंक ये फंड रिकवर होगा। वजीर शायद लोन लेके लोगों को फंड चुका है, लेकिन कौन बचाएगा वजीर को, लाइक वो विल इन्वेस्ट इन वजीर, कि कौन 2000 करोड़ डालेगा उसमें अपना अरे फंड, लोगों के कस्टमर का पास फंड। लाइक कोई एक्सचेंजेस के पास उतना पैसा नहीं होता, लाइक हाँ सर्कुलेशन में एक्चुअली एक्सेस नहीं होता कि वो दूसरों को दे सके, उनका राइट, खुद का लाइक सर्कुलेशन नहीं, लाइक होना इन चाहिए। इन लाइक जैसे पीएमसी बैंक हुआ था, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक है ना, तब कौन था ये अपने भारत पे का फाउंडर, लाइक ही यूज्ड टू मैनेज, he were able to manage bring a fund, वो अच्छा, ले आया बाहर से पैसा और लाइक उसने कस्टमर का डिपॉजिट मिल गया सबको, फुल एंड ऑल। भारत पे का कौन है, अरे दैट्स द शार्क टैंक में जो आया था वो फेमस हाँ, गाय, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक। तो लाइक अगर कोई लाइक इफ यू हैव 2000 करोड़ एंड इफ यू वांट टू लाइक इफ यू वांट टू हैव बाय वजीरेक्स, देन यू कैन बाय वजीरेक्स एंड कस्टमर को सबको डिपॉजिट दे दो, लेकिन जैसे डिपॉजिट दोगे वो सब चले जाएंगे, राइट, छोड़ के छोड़ के चले जाएंगे, तो कोई पता नहीं हाथ पकड़ेगा कि नहीं इसका। मुश्किल है, डाउटफुल, हम्म देखने को मिलेगा। दिस नेक्स्ट फ्यू डेज पता चलना चाहिए कि क्या बोलते हैं, हम्म क्या करते हैं। उनके हम्म अनाउंसमेंट्स एंड उनके न्यूज़ आर सो क्रिप्टिक एंड वो अपने ही धुन में चल रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट प्रॉब्ली अपने लिए क्या कर सकते हैं, बट हम्म ऑब्वियसली सिंस यूजर्स का पैसा है, दे नीड टू बी इंटिमेटेड, दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड कि क्या चल रहा है। हम्म तो अगर अश्योरेंस नहीं मिलेगी तो इन्होंने इवन गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर दिया ना, क्या बोलते हैं, कांटेक्ट कर दिया इंडियन गवर्नमेंट्स को भी, साइबर क्राइम को भी, ये उससे क्या होगा, सो उससे कुछ मतलब नहीं उनके हाथ में कुछ नहीं है, लाइक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब गवर्नमेंट बचाओ, हमारा कुछ नहीं है ना। नॉट पॉसिबल। चलो देखते हैं जो भी होता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। Yeah, next week on the 16th episode, we completed 15 episode, so it's great. Yeah. यस चलिए, ठीक थैंक है यू। guys, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली को वीडियो जरूर भेजो। Like we are trying hard every week, like and it is really hard like to come and sit for every week, time nikalna, and we are doing it for like free, and we are also investing our time and money. So like if you like share it and थोड़ा बहुत comment करके बताओ तो we will feel good, और हम like we will help you yeah in Bitcoin space. बिल्कुल, माय सेकंड टू एवरीथिंग व्हाट भाविक सेड। ठीक ठीक है, चलिए है guys, मिलते हैं। bye bye, Thank you. yeah.